اگر آپ نے اپنے اس پاگل پن کے خول سے نکلنے کی کوشش کی نا، میں سمجھ گئی ہوں، اور فٹ پاتھ آپ کا مقدر ہوگا، تو یاد رکھیے گا طلاق یافتہ بیٹی کہ مجھے کب اور کیا کرنا ہے۔ اس گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، ایک ایک بات اگر میں نے نہ بتائی شاہ نواز کو، میں سب دیکھ رہی ہوں۔ میرا نام بھی جمیلہ نہیں۔ یہ میں آپ نہرو آ جائے تو اس کو دے دیں گے۔ جب بڑی اسکرین پہ نظر آئے گا۔ زندگی اتنی گزارتا ہوں جتنی ملی ہے۔ مدھو میں خواب نہیں دیکھتا یار کہ میرے فون پہ کسی نے ویڈیو سینڈ کی ہے۔ میں تم سے صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ میرے موبائل پہ وہ ویڈیو کس نے بھیجی ہے؟ گھر بسانے کے لیے آپ لوگوں نے دوسروں کا گھر اجاڑ دیا، اس بیچاری کا پورا گھر برباد کر دیا، پھر بھی چین نہیں آیا آپ کو؟ کیونکہ مجھے تم سے بے حد محبت۔ یہ منہ اور ماتھے پر چوٹیں کیسی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ زخموں پر لگانے کی دوا تو ہوتی ہے میرے پاس۔ مجھ سے زیادہ محبت تمہیں کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے پاس ہوگی۔ نوشیروہ جب دعا سے کہتا ہے کہ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو دعا تو تب سے حیران ہی ہو جاتی ہے کہ یہ ایسی لڑکی سے بھلا کون نکاح کر سکتا ہے، اتنا پیار کرنے والا اور وہ بھی اس کے پیچھے جان مارنے والا، اور وہ فوراً سے ہاں کر دیتی ہے اور وہ زنیرہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ دعا میری امانت ہے، میں اسے کچھ دنوں تک لینے کے لیے آؤں گا، اور زنیرہ کہتی ہے کہ اب آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ نے صرف ایک ملاقات کی قیمت ادا کی ہے۔ نوشیروہ کہتا ہے کہ میں دعا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور منہ مانگی قیمت دوں گا۔ سب وہاں پر کھڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ نوشیروہ دعا سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ دعا کی قیمت نہیں بلکہ اس کے سر کا صدقہ دینا چاہتا ہوں۔ دعا تو نوشیروہ کی یہ بات سن کر حیران ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے دل ہی دل میں، کیونکہ وہ زنیرہ کے جنگل سے بچنے والی ہے اور اس کی شادی ایک بہت ہی حسین آدمی سے ہونے والی ہے جو اس سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور رات کو جب دعا سوچتی ہے کہ جب نوشیروہ اسے نکاح کے لیے کہتا ہے، وہ سب اپنے خیالوں میں سوچ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اب وہ نوشیروہ کو بھی پسند کرنے لگ گئی ہے اور اس نے نکاح کے لیے ہاں کر دی ہے۔ اگلے ہی دن جب نوشیروہ جب زنیرہ سے کہتا ہے کہ اب میں دعا سے نکاح کے لیے تیار ہوں، اور وہاں پر سب نکاح والے بھی آ جاتے ہیں اور مولوی بھی، اور دعا کہہ دیتی ہے کہ ہاں مجھے قبول ہے، اور نوشیروہ لے کر دعا کو جب اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے تو اس پر حملہ ہو جاتا ہے۔ کچھ گنڈے نوشیروہ پر حملہ کر دیتے ہیں اور دعا کو سر پر چوٹ لگتی ہے اور وہ گاڑی میں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ نوشیروہ جب دعا کو دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دشمن کو اپنے انجام تک پہنچا دیتا ہے، اور اسی طرح دعا کو اپنے گھر لے آتا ہے اور اب بہت ہی اچھے ڈاکٹر کو چیک کرواتا ہے تو معمولی سی چوٹ کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور دعا بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ اور اگلے ہی دن دعا کہتی ہے کہ وہ کون لوگ تھے۔ نوشیروہ کہتا ہے کہ ہمارے بہت سے دشمن ہیں، ہمیں بچ کر رہنا چاہیے، تم ہمیشہ سیکورٹی میں ہی رہنا، کیونکہ میرے بہت زیادہ دشمن ہیں اور اسی وجہ سے میرے اوپر پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے اور میں ابھی مرتا مرتا بچا ہوں۔ دعا یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اس نے کس کے ساتھ شادی کر لی ہے، وہ بھی ایک خطرناک آدمی کے ساتھ جس کے بہت زیادہ دشمن ہے، لیکن دعا اس کا پیار دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہے، کیونکہ نوشیروہ دعا سے بہت محبت کرتا ہے اور اسی وجہ سے وہ اب اتنا نہیں سوچتی، اور نوشیروہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، اور دن بہ دن دعا بھی نوشیروہ سے محبت کرنے لگ جاتی ہے اور اس کا خیال رکھتی ہے، اور نوشیروہ کے گھر والوں کو ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ اس نے دعا سے شادی کی ہے اور کس لڑکی سے کی ہے۔ جب پتہ چلے گا تو اس کا بابا سائیں بہت زیادہ ناراض ہوگا اور وہ نوشیروہ انہیں کوئی جواب دینے کا پابند نہیں ہوگا کہ اس نے کس لڑکی سے شادی کی ہے۔
उसका बाबा बहुत ज़्यादा बातें सुनाएगा और नाराज़ भी होगा, और उसकी बीवी को भी मालूम हो जाएगा कि उसने दुआ नाम की लड़की से शादी कर ली है, और वो बहुत ज़्यादा रोएगी क्योंकि वो भी नौशेरवा से बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन नौशेरवा उसे देखता तक नहीं, क्योंकि वो अपनी ही भाभी ही समझता है, उसे अपनी बीवी आज तक उसने नहीं समझा। नौशेरवा जब दुआ से कहता है कि वो उससे निकाह करना चाहता है तो दुआ तो तब से हैरान ही हो जाती है कि ये ऐसी लड़की से भला कौन निकाह कर सकता है, इतना प्यार करने वाला, और वो भी उसके पीछे जान मारने वाला। और वो फ़ौरन से हाँ कर देती है, और वो ज़ुनैरा के पास आकर कहता है कि दुआ मेरी इमानत है, मैं इसे कुछ दिनों तक लेने के लिए आऊँगा। और ज़ुनैरा कहती है कि अब आप ज़्यादती कर रहे हैं, आपने सिर्फ़ एक मुलाकात की कीमत अदा की है। नौशेरवा कहता है कि मैं दुआ से निकाह करना चाहता हूँ और मुँह मांगी कीमत दूंगा। सब वहाँ पर खड़े हैरान हो जाते हैं कि नौशेरवा दुआ से निकाह करना चाहता है, और वो कहता है कि मैं ये दुआ की कीमत नहीं बल्कि उसके सर का सदका देना चाहता हूँ। दुआ तो नौशेरवा की ये बात सुनकर हैरान होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है दिल ही दिल में, क्योंकि वो ज़ुनैरा के जंगल से बचने वाली है और उसकी शादी एक बहुत ही हसीन आदमी से होने वाली है जो उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और रात को जब दुआ सोचती है कि जब नौशेरवा उसे निकाह के लिए कहता है, वो सब अपने ख्यालों में सोच रही होती है, क्योंकि अब वो नौशेरवा को भी पसंद करने लग गई है और उसने निकाह के लिए हाँ कर दी है। अगले ही दिन जब नौशेरवा ज़ुनैरा से कहता है कि अब मैं दुआ से निकाह के लिए तैयार हूँ, और वहाँ पर सब निकाह वाले भी आ जाते हैं और मौलवी भी, और दुआ कह देती है कि हाँ मुझे कबूल है। और नौशेरवा लेकर दुआ को जब अपने घर जा रहा होता है तो उस पर हमला हो जाता है। कुछ गुंडे नौशेरवा पर हमला कर देते हैं और दुआ को सर पर चोट लगती है और वो गाड़ी में बेहोश हो जाती है। नौशेरवा जब दुआ को देखता है तो वो परेशान हो जाता है और वो अपने दुश्मन को अपने अंजाम तक पहुंचा देता है, और इसी तरह दुआ को अपने घर ले आता है और अब बहुत ही अच्छे डॉक्टर को चेक करवाता है तो मामूली सी चोट की वजह से बेहोश हुई होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और दुआ बिल्कुल ठीक होती है। और अगले ही दिन दुआ कहती है कि वो कौन लोग थे। नौशेरवा कहता है कि हमारे बहुत से दुश्मन हैं, हमें बच कर रहना चाहिए, तुम हमेशा सिक्योरिटी में ही रहना, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं और इसी वजह से मेरे ऊपर पहले भी हमला हो चुका है और मैं अभी मरता मरता बचा हूँ। दुआ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसने किसके साथ शादी कर ली है, वो भी एक ख़तरनाक आदमी के साथ जिसके बहुत ज़्यादा दुश्मन है। लेकिन दुआ उसका प्यार देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि नौशेरवा दुआ से बहुत मोहब्बत करता है और इसी वजह से वो अब इतना नहीं सोचती और नौशेरवा उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। और दिन ब दिन दुआ भी नौशेरवा से मोहब्बत करने लग जाती है और उसका ख्याल रखती है। और नौशेरवा के घर वालों को अभी तक मालूम नहीं है कि उसने दुआ से शादी की है और किस लड़की से की है। जब पता चलेगा तो उसका बाबा साईं बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा और वो नौशेरवा उन्हें कोई जवाब देने का पाबंद नहीं होगा कि उसने किस लड़की से शादी की है। उसका बाबा बहुत ज़्यादा बातें सुनाएगा और नाराज़ भी होगा, और उसकी बीवी को भी मालूम हो जाएगा कि उसने दुआ नाम की लड़की से शादी कर ली है, और वो बहुत ज़्यादा रोएगी क्योंकि वो भी नौशेरवा से बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन नौशेरवा उसे देखता तक नहीं, क्योंकि वो अपनी ही भाभी ही समझता है, उसे अपनी बीवी आज तक उसने नहीं समझा। नौशेरवा जब दुआ से कहता है कि वो उससे निकाह करना चाहता है तो दुआ तो तब से हैरान ही हो जाती है कि ये ऐसी लड़की से भला कौन निकाह कर सकता है, इतना प्यार करने वाला, और वो भी उसके पीछे जान मारने वाला। और वो फ़ौरन से हाँ कर देती है और वो ज़ुनैरा के पास आकर कहता है कि दुआ मेरी इमानत है, मैं इसे कुछ दिनों तक लेने के लिए आऊँगा। और ज़ुनैरा कहती है कि अब आप ज़्यादती कर रहे हैं,
آپ نے صرف ایک ملاقات کی قیمت ادا کی ہے۔ نوشیروان کہتا ہے کہ میں دعا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور منہ مانگی قیمت دوں گا۔ سب وہاں پر کھڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ نوشیروان دعا سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ دعا کی قیمت نہیں بلکہ اس کے سر کا صدقہ دینا چاہتا ہوں۔ دعا تو نوشیروان کی یہ بات سن کر حیران ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے دل ہی دل میں، کیونکہ وہ زنیرہ کے جنگل سے بچنے والی ہے اور اس کی شادی ایک بہت ہی حسین آدمی سے ہونے والی ہے جو اس سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور رات کو جب دعا سوچتی ہے کہ جب نوشیروان اسے نکاح کے لیے کہتا ہے، وہ سب اپنے خیالوں میں سوچ رہی ہوتی ہے کیونکہ اب وہ نوشیروان کو بھی پسند کرنے لگ گئی ہے اور اس نے نکاح کے لیے ہاں کر دی ہے۔ اگلے ہی دن جب نوشیروان زنیرہ سے کہتا ہے کہ اب میں دعا سے نکاح کے لیے تیار ہوں، اور وہاں پر سب نکاح والے بھی آ جاتے ہیں اور مولوی بھی، اور دعا کہہ دیتی ہے کہ ہاں مجھے قبول ہے۔ اور نوشیروان لے کر دعا کو جب اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے تو اس پر حملہ ہو جاتا ہے۔ کچھ گنڈے نوشیروان پر حملہ کر دیتے ہیں اور دعا کو سر پر چوٹ لگتی ہے اور وہ گاڑی میں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ نوشیروان جب دعا کو دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دشمن کو اپنے انجام تک پہنچا دیتا ہے اور اسی طرح دعا کو اپنے گھر لے آتا ہے اور اب بہت ہی اچھے ڈاکٹر کو چیک کرواتا ہے تو معمولی سی چوٹ کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور دعا بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ اور اگلے ہی دن دعا کہتی ہے کہ وہ کون لوگ تھے۔ نوشیروان کہتا ہے کہ ہمارے بہت سے دشمن ہیں، ہمیں بچ کر رہنا چاہیے، تم ہمیشہ سیکورٹی میں ہی رہنا کیونکہ میرے بہت زیادہ دشمن ہیں اور اسی وجہ سے میرے اوپر پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے اور میں ابھی مرتا مرتا بچا ہوں۔ دعا یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اس نے کس کے ساتھ شادی کر لی ہے، وہ بھی ایک خطرناک آدمی کے ساتھ جس کے بہت زیادہ دشمن ہے۔ لیکن دعا اس کا پیار دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہے کیونکہ نوشیروان دعا سے بہت محبت کرتا ہے اور اسی وجہ سے وہ اب اتنا نہیں سوچتی اور نوشیروان اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے اور دن بہ دن دعا بھی نوشیروان سے محبت کرنے لگ جاتی ہے اور اس کا خیال رکھتی ہے اور نوشیروان کے گھر والوں کو ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ اس نے دعا سے شادی کی ہے اور کس لڑکی سے کی ہے۔ جب پتہ چلے گا تو اس کا بابا سائیں بہت زیادہ ناراض ہوگا اور وہ نوشیروان انہیں کوئی جواب دینے کا پابند نہیں ہوگا کہ اس نے کس لڑکی سے شادی کی ہے۔ اس کا بابا بہت زیادہ باتیں سنائے گا اور ناراض بھی ہوگا اور اس کی بیوی کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے دعا نام کی لڑکی سے شادی کر لی ہے اور وہ بہت زیادہ روئے گی کیونکہ وہ بھی نوشیروان سے بہت محبت کرتی ہے لیکن نوشیروان اسے دیکھتا تک نہیں کیونکہ وہ اپنی ہی بھابھی ہی سمجھتا ہے، اسے اپنی بیوی آج تک اس نے نہیں سمجھا۔ نوشیروان جب دعا سے کہتا ہے کہ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو دعا تو تب سے حیران ہی ہو جاتی ہے کہ ایسی لڑکی سے بھلا کون نکاح کر سکتا ہے، اتنا پیار کرنے والا اور وہ بھی اس کے پیچھے جان مارنے والا، اور وہ فوراً سے ہاں کر دیتی ہے اور وہ زنیرہ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ دعا میری امانت ہے، میں اسے کچھ دنوں تک لینے کے لیے آؤں گا۔ اور زنیرہ کہتی ہے کہ اب آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ نے صرف ایک ملاقات کی قیمت ادا کی ہے۔ نوشیروان کہتا ہے کہ میں دعا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور منہ مانگی قیمت دوں گا۔ سب وہاں پر کھڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ نوشیروان دعا سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ دعا کی قیمت نہیں بلکہ اس کے سر کا صدقہ دینا چاہتا ہوں۔ دعا تو نوشیروان کی یہ بات سن کر حیران ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے دل ہی دل میں کیونکہ وہ زنیرہ کے جنگل سے بچنے والی ہے اور اس کی شادی ایک بہت ہی حسین آدمی سے ہونے والی ہے جو اس سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور رات کو جب دعا سوچتی ہے کہ جب نوشیروان اسے نکاح کے لیے کہتا ہے، وہ سب اپنے خیالوں میں سوچ رہی ہوتی ہے کیونکہ اب وہ نوشیروان کو بھی پسند کرنے لگ گئی ہے اور
उसने निकाह के लिए हाँ कर दी है। अगले ही दिन जब नौशेरवां जब जुनैरा से कहता है कि अब मैं दुआ से निकाह के लिए तैयार हूँ, और वहाँ पर सब निकाह वाले भी आ जाते हैं और मौलवी भी, और दुआ कह देती है कि हाँ मुझे कबूल है। और नौशेरवां लेकर दुआ को जब अपने घर जा रहा होता है तो उस पर हमला हो जाता है। कुछ गुंडे नौशेरवां पर हमला कर देते हैं और दुआ को सर पर चोट लगती है और वो गाड़ी में बेहोश हो जाती है। नौशेरवां जब दुआ को देखता है तो वो परेशान हो जाता है और वो अपने दुश्मन को अपने अंजाम तक पहुंचा देता है, और इसी तरह दुआ को अपने घर ले आता है और अब बहुत ही अच्छे डॉक्टर को चेक करवाता है तो मामूली सी चोट की वजह से बेहोश हुई होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और दुआ बिल्कुल ठीक होती है। और अगले ही दिन दुआ कहती है कि वो कौन लोग थे। नौशेरवां कहता है कि हमारे बहुत से दुश्मन हैं, हमें बच कर रहना चाहिए, तुम हमेशा सिक्योरिटी में ही रहना, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं और इसी वजह से मेरे ऊपर पहले भी हमला हो चुका है और मैं अभी मरता मरता बचा हूँ। दुआ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसने किसके साथ शादी कर ली है, वो भी एक ख़तरनाक आदमी के साथ जिसके बहुत ज़्यादा दुश्मन है। लेकिन दुआ उसका प्यार देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि नौशेरवां दुआ से बहुत मोहब्बत करता है और इसी वजह से वो अब इतना नहीं सोचती, और नौशेरवां उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। और दिन ब दिन दुआ भी नौशेरवां से मोहब्बत करने लग जाती है और उसका ख्याल रखती है, और नौशेरवां के घर वालों को अभी तक मालूम नहीं है कि उसने दुआ से शादी की है और किस लड़की से की है। जब पता चलेगा तो उसका बाबा साईं बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा और वो नौशेरवां उन्हें कोई जवाब देने का पाबंद नहीं होगा कि उसने किस लड़की से शादी की है। उसका बाबा बहुत ज़्यादा बातें सुनाएगा और नाराज़ भी होगा, और उसकी बीवी को भी मालूम हो जाएगा कि उसने दुआ नाम की लड़की से शादी कर ली है, और वो बहुत ज़्यादा रोएगी क्योंकि वो भी नौशेरवां से बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन नौशेरवां उसे देखता तक नहीं, क्योंकि वो अपनी ही भाभी ही समझता है, उसे अपनी बीवी आज तक उसने नहीं समझा। नौशेरवां जब दुआ से कहता है कि वो उससे निकाह करना चाहता है तो दुआ तो तब से हैरान ही हो जाती है कि ये ऐसी लड़की से भला कौन निकाह कर सकता है, इतना प्यार करने वाला और वो भी उसके पीछे जान मारने वाला। और वो फ़ौरन से हाँ कर देती है और वो जुनैरा के पास आकर कहता है कि दुआ मेरी इमानत है, मैं इसे कुछ दिनों तक लेने के लिए आऊँगा। और जुनैरा कहती है कि अब आप ज़्यादती कर रहे हैं, आपने सिर्फ़ एक मुलाकात की कीमत अदा की है। नौशेरवां कहता है कि मैं दुआ से निकाह करना चाहता हूँ और मुँह मांगी कीमत दूंगा। सब वहाँ पर खड़े हैरान हो जाते हैं कि नौशेरवां दुआ से निकाह करना चाहता है, और वो कहता है कि मैं ये दुआ की कीमत नहीं बल्कि उसके सर का सदका देना चाहता हूँ। दुआ तो नौशेरवां की ये बात सुनकर हैरान होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है दिल ही दिल में, क्योंकि वो जुनैरा के जंगल से बचने वाली है और उसकी शादी एक बहुत ही हसीन आदमी से होने वाली है जो उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और रात को जब दुआ सोचती है कि जब नौशेरवां उसे निकाह के लिए कहता है, वो सब अपने ख्यालों में सोच रही होती है, क्योंकि अब वो नौशेरवां को भी पसंद करने लग गई है और उसने निकाह के लिए हाँ कर दी है। अगले ही दिन जब नौशेरवां जब जुनैरा से कहता है कि अब मैं दुआ से निकाह के लिए तैयार हूँ, और वहाँ पर सब निकाह वाले भी आ जाते हैं और मौलवी भी, और दुआ कह देती है कि हाँ मुझे कबूल है। और नौशेरवां लेकर दुआ को जब अपने घर जा रहा होता है तो उस पर हमला हो जाता है। कुछ गुंडे नौशेरवां पर हमला कर देते हैं और दुआ को सर पर चोट लगती है और वो गाड़ी में बेहोश हो जाती है। नौशेरवां जब दुआ को देखता है तो वो परेशान हो जाता है और वो अपने दुश्मन को अपने अंजाम तक पहुंचा देता है, और इसी तरह दुआ को अपने घर ले आता है और अब बहुत ही अच्छे डॉक्टर को चेक करवाता है तो मामूली सी चोट की वजह से बेहोश हुई होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और दुआ बिल्कुल ठीक होती है। और अगले ही दिन दुआ
कहती है कि वो कौन लोग थे। नौशेरवा कहता है कि हमारे बहुत से दुश्मन हैं, हमें बच कर रहना चाहिए, तुम हमेशा सिक्योरिटी में ही रहना, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं और इसी वजह से मेरे ऊपर पहले भी हमला हो चुका है और मैं अभी मरता मरता बचा हूँ। दुआ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसने किसके साथ शादी कर ली है, वो भी एक ख़तरनाक आदमी के साथ जिसके बहुत ज़्यादा दुश्मन है। लेकिन दुआ उसका प्यार देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि नौशेरवा दुआ से बहुत मोहब्बत करता है और इसी वजह से वो अब इतना नहीं सोचती और नौशेरवा उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और दिन ब दिन दुआ भी नौशेरवा से मोहब्बत करने लग जाती है और उसका ख्याल रखती है। और नौशेरवा के घर वालों को अभी तक मालूम नहीं है कि उसने दुआ से शादी की है और किस लड़की से की है। जब पता चलेगा तो उसका बाबा साईं बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा और वो नौशेरवा उन्हें कोई जवाब देने का पाबंद नहीं होगा कि उसने किस लड़की से शादी की है। उसका बाबा बहुत ज़्यादा बातें सुनाएगा और नाराज़ भी होगा और उसकी बीवी को भी मालूम हो जाएगा कि उसने दुआ नाम की लड़की से शादी कर ली है और वो बहुत ज़्यादा रोएगी, क्योंकि वो भी नौशेरवा से बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन नौशेरवा उसे देखता तक नहीं, क्योंकि वो अपनी ही भाभी ही समझता है, उसे अपनी बीवी आज तक उसने नहीं समझा। नौशेरवा जब दुआ से कहता है कि वो उससे निकाह करना चाहता है तो दुआ तो तब से हैरान ही हो जाती है कि ये ऐसी लड़की से भला कौन निकाह कर सकता है, इतना प्यार करने वाला और वो भी उसके पीछे जान मारने वाला। और वो फ़ौरन से हाँ कर देती है और वो ज़ुनैरा के पास आकर कहता है कि दुआ मेरी इमानत है, मैं इसे कुछ दिनों तक लेने के लिए आऊँगा। और ज़ुनैरा कहती है कि अब आप ज़्यादती कर रहे हैं, आपने सिर्फ़ एक मुलाकात की कीमत अदा की है। नौशेरवा कहता है कि मैं दुआ से निकाह करना चाहता हूँ और मुँह मांगी कीमत दूंगा। सब वहाँ पर खड़े हैरान हो जाते हैं कि नौशेरवा दुआ से निकाह करना चाहता है और वो कहता है कि मैं ये दुआ की कीमत नहीं बल्कि उसके सर का सदका देना चाहता हूँ। दुआ तो नौशेरवा की ये बात सुनकर हैरान होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है दिल ही दिल में, क्योंकि वो ज़ुनैरा के जंगल से बचने वाली है और उसकी शादी एक बहुत ही हसीन आदमी से होने वाली है जो उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और रात को जब दुआ सोचती है कि जब नौशेरवा उसे निकाह के लिए कहता है, वो सब अपने ख्यालों में सोच रही होती है, क्योंकि अब वो नौशेरवा को भी पसंद करने लग गई है और उसने निकाह के लिए हाँ कर दी है। अगले ही दिन जब नौशेरवा ज़ुनैरा से कहता है कि अब मैं दुआ से निकाह के लिए तैयार हूँ और वहाँ पर सब निकाह वाले भी आ जाते हैं और मौलवी भी, और दुआ कह देती है कि हाँ मुझे कबूल है। और नौशेरवा लेकर दुआ को जब अपने घर जा रहा होता है तो उस पर हमला हो जाता है। कुछ गुंडे नौशेरवा पर हमला कर देते हैं और दुआ को सर पर चोट लगती है और वो गाड़ी में बेहोश हो जाती है। नौशेरवा जब दुआ को देखता है तो वो परेशान हो जाता है और वो अपने दुश्मन को अपने अंजाम तक पहुंचा देता है और इसी तरह दुआ को अपने घर ले आता है और अब बहुत ही अच्छे डॉक्टर को चेक करवाता है तो मामूली सी चोट की वजह से बेहोश हुई होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और दुआ बिल्कुल ठीक होती है। और अगले ही दिन दुआ कहती है कि वो कौन लोग थे। नौशेरवा कहता है कि हमारे बहुत से दुश्मन हैं, हमें बच कर रहना चाहिए, तुम हमेशा सिक्योरिटी में ही रहना, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं और इसी वजह से मेरे ऊपर पहले भी हमला हो चुका है और मैं अभी मरता मरता बचा हूँ। दुआ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसने किसके साथ शादी कर ली है, वो भी एक ख़तरनाक आदमी के साथ जिसके बहुत ज़्यादा दुश्मन है। लेकिन दुआ उसका प्यार देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि नौशेरवा दुआ से बहुत मोहब्बत करता है और इसी वजह से वो अब इतना नहीं सोचती और नौशेरवा उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और
दिन ब दिन दुआ भी नौशेरवा से मोहब्बत करने लग जाती है और उसका ख्याल रखती है। और नौशेरवा के घर वालों को अभी तक मालूम नहीं है कि उसने दुआ से शादी की है और किस लड़की से की है। जब पता चलेगा तो उसका बाबा साईं बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा और वो नौशेरवा उन्हें कोई जवाब देने का पाबंद नहीं होगा कि उसने किस लड़की से शादी की है। उसका बाबा बहुत ज़्यादा बातें सुनाएगा और नाराज़ भी होगा और उसकी बीवी को भी मालूम हो जाएगा कि उसने दुआ नाम की लड़की से शादी कर ली है और वो बहुत ज़्यादा रोएगी क्योंकि वो भी नौशेरवा से बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन नौशेरवा उसे देखता तक नहीं क्योंकि वो अपनी ही भाभी ही समझता है, उसे अपनी बीवी आज तक उसने नहीं समझा। नौशेरवा जब दुआ से कहता है कि वो उससे निकाह करना चाहता है तो दुआ तो तब से हैरान ही हो जाती है कि ये ऐसी लड़की से भला कौन निकाह कर सकता है, इतना प्यार करने वाला और वो भी उसके पीछे जान मारने वाला। और वो फ़ौरन से हाँ कर देती है और वो ज़ुनैरा के पास आकर कहता है कि दुआ मेरी इमानत है, मैं इसे कुछ दिनों तक लेने के लिए आऊँगा। और ज़ुनैरा कहती है कि अब आप ज़्यादती कर रहे हैं, आपने सिर्फ़ एक मुलाकात की कीमत अदा की है। नौशेरवा कहता है कि मैं दुआ से निकाह करना चाहता हूँ और मुँह मांगी कीमत दूंगा। सब वहाँ पर खड़े हैरान हो जाते हैं कि नौशेरवा दुआ से निकाह करना चाहता है और वो कहता है कि मैं ये दुआ की कीमत नहीं बल्कि उसके सर का सदका देना चाहता हूँ। दुआ तो नौशेरवा की ये बात सुनकर हैरान होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है दिल ही दिल में क्योंकि वो ज़ुनैरा के जंगल से बचने वाली है और उसकी शादी एक बहुत ही हसीन आदमी से होने वाली है जो उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और रात को जब दुआ सोचती है कि जब नौशेरवा उसे निकाह के लिए कहता है वो सब अपने ख्यालों में सोच रही होती है क्योंकि अब वो नौशेरवा को भी पसंद करने लग गई है और उसने निकाह के लिए हाँ कर दी है। अगले ही दिन जब नौशेरवा जब ज़ुनैरा से कहता है कि अब मैं दुआ से निकाह के लिए तैयार हूँ और वहाँ पर सब निकाह वाले भी आ जाते हैं और मौलवी भी, और दुआ कह देती है कि हाँ मुझे कबूल है। और नौशेरवा लेकर दुआ को जब अपने घर जा रहा होता है तो उस पर हमला हो जाता है। कुछ गुंडे नौशेरवा पर हमला कर देते हैं और दुआ को सर पर चोट लगती है और वो गाड़ी में बेहोश हो जाती है। नौशेरवा जब दुआ को देखता है तो वो परेशान हो जाता है और वो अपने दुश्मन को अपने अंजाम तक पहुंचा देता है और इसी तरह दुआ को अपने घर ले आता है और अब बहुत ही अच्छे डॉक्टर को चेक करवाता है तो मामूली सी चोट की वजह से बेहोश हुई होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और दुआ बिल्कुल ठीक होती है। और अगले ही दिन दुआ कहती है कि वो कौन लोग थे। नौशेरवा कहता है कि हमारे बहुत से दुश्मन हैं, हमें बच कर रहना चाहिए, तुम हमेशा सिक्योरिटी में ही रहना क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं और इसी वजह से मेरे ऊपर पहले भी हमला हो चुका है और मैं अभी मरता मरता बचा हूँ। दुआ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसने किसके साथ शादी कर ली है, वो भी एक ख़तरनाक आदमी के साथ जिसके बहुत ज़्यादा दुश्मन है। लेकिन दुआ उसका प्यार देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि नौशेरवा दुआ से बहुत मोहब्बत करता है और इसी वजह से वो अब इतना नहीं सोचती और नौशेरवा उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और दिन ब दिन दुआ भी नौशेरवा से मोहब्बत करने लग जाती है और उसका ख्याल रखती है। और नौशेरवा के घर वालों को अभी तक मालूम नहीं है कि उसने दुआ से शादी की है और किस लड़की से की है। जब पता चलेगा तो उसका बाबा साईं बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा और वो नौशेरवा उन्हें कोई जवाब देने का पाबंद नहीं होगा कि उसने किस लड़की से शादी की है। उसका बाबा बहुत ज़्यादा बातें सुनाएगा और नाराज़ भी होगा और उसकी बीवी को भी मालूम हो जाएगा कि उसने दुआ नाम की लड़की से शादी कर ली है और वो बहुत ज़्यादा रोएगी क्योंकि वो भी नौशेरवा से बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन नौशेरवा उसे देखता तक नहीं क्योंकि वो अपनी ही भाभी ही समझता है, उसे अपनी बीवी आज तक उसने नहीं समझा।
नौशेरवा जब दुआ से कहता है कि वो उससे निकाह करना चाहता है तो दुआ तो तब से हैरान ही हो जाती है कि ये ऐसी लड़की से भला कौन निकाह कर सकता है, इतना प्यार करने वाला और वो भी उसके पीछे जान मारने वाला। और वो फ़ौरन से हाँ कर देती है और वो ज़ुनैरा के पास आकर कहता है कि दुआ मेरी इमानत है, मैं इसे कुछ दिनों तक लेने के लिए आऊँगा। और ज़ुनैरा कहती है कि अब आप ज़्यादती कर रहे हैं, आपने सिर्फ़ एक मुलाकात की कीमत अदा की है। नौशेरवा कहता है कि मैं दुआ से निकाह करना चाहता हूँ और मुँह मांगी कीमत दूंगा। सब वहाँ पर खड़े हैरान हो जाते हैं कि नौशेरवा दुआ से निकाह करना चाहता है और वो कहता है कि मैं ये दुआ की कीमत नहीं बल्कि उसके सर का सदका देना चाहता हूँ। दुआ तो नौशेरवा की ये बात सुनकर हैरान होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है दिल ही दिल में, क्योंकि वो ज़ुनैरा के जंगल से बचने वाली है और उसकी शादी एक बहुत ही हसीन आदमी से होने वाली है जो उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और रात को जब दुआ सोचती है कि जब नौशेरवा उसे निकाह के लिए कहता है, वो सब अपने ख्यालों में सोच रही होती है, क्योंकि अब वो नौशेरवा को भी पसंद करने लग गई है और उसने निकाह के लिए हाँ कर दी है। अगले ही दिन जब नौशेरवा जब ज़ुनैरा से कहता है कि अब मैं दुआ से निकाह के लिए तैयार हूँ, और वहाँ पर सब निकाह वाले भी आ जाते हैं और मौलवी भी, और दुआ कह देती है कि हाँ मुझे कबूल है। और नौशेरवा लेकर दुआ को जब अपने घर जा रहा होता है तो उस पर हमला हो जाता है। कुछ गुंडे नौशेरवा पर हमला कर देते हैं और दुआ को सर पर चोट लगती है और वो गाड़ी में बेहोश हो जाती है। नौशेरवा जब दुआ को देखता है तो वो परेशान हो जाता है और वो अपने दुश्मन को अपने अंजाम तक पहुंचा देता है और इसी तरह दुआ को अपने घर ले आता है और अब बहुत ही अच्छे डॉक्टर को चेक करवाता है तो मामूली सी चोट की वजह से बेहोश हुई होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और दुआ बिल्कुल ठीक होती है। और अगले ही दिन दुआ कहती है कि वो कौन लोग थे। नौशेरवा कहता है कि हमारे बहुत से दुश्मन हैं, हमें बच कर रहना चाहिए, तुम हमेशा सिक्योरिटी में ही रहना, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं और इसी वजह से मेरे ऊपर पहले भी हमला हो चुका है और मैं अभी मरता मरता बचा हूँ। दुआ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसने किसके साथ शादी कर ली है, वो भी एक ख़तरनाक आदमी के साथ जिसके बहुत ज़्यादा दुश्मन है। लेकिन दुआ उसका प्यार देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि नौशेरवा दुआ से बहुत मोहब्बत करता है और इसी वजह से वो अब इतना नहीं सोचती और नौशेरवा उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और दिन ब दिन दुआ भी नौशेरवा से मोहब्बत करने लग जाती है और उसका ख्याल रखती है। और नौशेरवा के घर वालों को अभी तक मालूम नहीं है कि उसने दुआ से शादी की है और किस लड़की से की है। जब पता चलेगा तो उसका बाबा साईं बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा और वो नौशेरवा उन्हें कोई जवाब देने का पाबंद नहीं होगा कि उसने किस लड़की से शादी की है। उसका बाबा बहुत ज़्यादा बातें सुनाएगा और नाराज़ भी होगा और उसकी बीवी को भी मालूम हो जाएगा कि उसने दुआ नाम की लड़की से शादी कर ली है और वो बहुत ज़्यादा रोएगी, क्योंकि वो भी नौशेरवा से बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन नौशेरवा उसे देखता तक नहीं, क्योंकि वो अपनी ही भाभी ही समझता है, उसे अपनी बीवी आज तक उसने नहीं समझा। नौशेरवा जब दुआ से कहता है कि वो उससे निकाह करना चाहता है तो दुआ तो तब से हैरान ही हो जाती है कि ये ऐसी लड़की से भला कौन निकाह कर सकता है, इतना प्यार करने वाला और वो भी उसके पीछे जान मारने वाला। और वो फ़ौरन से हाँ कर देती है और वो ज़ुनैरा के पास आकर कहता है कि दुआ मेरी इमानत है, मैं इसे कुछ दिनों तक लेने के लिए आऊँगा। और ज़ुनैरा कहती है कि अब आप ज़्यादती कर रहे हैं, आपने सिर्फ़ एक मुलाकात की कीमत अदा की है। नौशेरवा कहता है कि मैं दुआ से निकाह करना चाहता हूँ और मुँह मांगी कीमत दूंगा। सब वहाँ पर खड़े हैरान हो जाते हैं कि नौशेरवा दुआ से निकाह करना चाहता है और वो कहता है कि मैं ये दुआ की कीमत नहीं बल्कि उसके सर का सदका देना चाहता हूँ। दुआ तो नौशेरवा की ये बात सुनकर हैरान होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है दिल ही दिल में, क्योंकि वो ज़ुनैरा के जंगल से
बचने वाली है और उसकी शादी एक बहुत ही हसीन आदमी से होने वाली है जो उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और रात को जब दुआ सोचती है कि जब नौशेरवा उसे निकाह के लिए कहता है, वो सब अपने ख्यालों में सोच रही होती है क्योंकि अब वो नौशेरवा को भी पसंद करने लग गई है और उसने निकाह के लिए हाँ कर दी है। अगले ही दिन जब नौशेरवा जब जुनैरा से कहता है कि अब मैं दुआ से निकाह के लिए तैयार हूँ, और वहाँ पर सब निकाह वाले भी आ जाते हैं और मौलवी भी, और दुआ कह देती है कि हाँ मुझे कबूल है। और नौशेरवा लेकर दुआ को जब अपने घर जा रहा होता है तो उस पर हमला हो जाता है। कुछ गुंडे नौशेरवा पर हमला कर देते हैं और दुआ को सर पर चोट लगती है और वो गाड़ी में बेहोश हो जाती है। नौशेरवा जब दुआ को देखता है तो वो परेशान हो जाता है और वो अपने दुश्मन को अपने अंजाम तक पहुंचा देता है और इसी तरह दुआ को अपने घर ले आता है और अब बहुत ही अच्छे डॉक्टर को चेक करवाता है तो मामूली सी चोट की वजह से बेहोश हुई होती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और दुआ बिल्कुल ठीक होती है। और अगले ही दिन दुआ कहती है कि वो कौन लोग थे। नौशेरवा कहता है कि हमारे बहुत से दुश्मन हैं, हमें बच कर रहना चाहिए, तुम हमेशा सिक्योरिटी में ही रहना क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं और इसी वजह से मेरे ऊपर पहले भी हमला हो चुका है और मैं अभी मरता मरता बचा हूँ। दुआ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसने किसके साथ शादी कर ली है, वो भी एक ख़तरनाक आदमी के साथ जिसके